वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु. You know what was the intent of our morning satsangs? Intent was to experience peace, experience fulfillment. How, why? That's our essential need, to experience peace. Not that we go to Gurudwara or Mandir. Not just that. Yes, why do we go to Gurudwara or a Mandir or a Masjid? To experience peace, not to ask some imaginary God for certain gifts. The only gift that we need is to experience fulfillment, satisfaction, happiness, peace. Vaheguru. And Gurbani I consider to be very, very profound to me because I don't know why, it just resonates with me. It is a Sarab Sanjibal Gurbani. Hare Ram. It's meant for the entire humanity. But well, it's more pertinent for those who know the language. We know Gurmukhi. I'm born in North India. I know Gurmukhi, so it resonates with me. For me, it summarizes all the Shastras. I tried to learn Sanskrit also, tried to read Quran also, and they all talk the same. Be it Vedanta, be it Upanishads, be it Quran Sharif. There is no difference in the message, in the intent. Intent is that man should be able to experience peace. So I said, you don't go to Gurdwara or a mandir or a masjid for experiencing peace, but you've come into human life to experience peace. Now, peace is a word. What is peace? When you experience it, you would know what is peace. अंदर कोई टर्ब्यूलेंस नहीं है, कोई आवाज नहीं है, खामोशी है, क्वाइट है, सब कुछ थम चुका है, रहाओ है. रहाओ इज पीस. ठहरो, रहाओ, कूल इट, ठंड रख. ये ऑल वर्ड्स. अंदर एक शांति चाहिए, हम सबको चाहिए. एंड उसके लिए ही ब्रह्म मुहूर्त बना है. टू बिगिन योर लाइफ मीन्स बिगिन योर डे. डे इज लाइफ. Every day is life. Every day is a new life. So begin your life in the early morning hours. It is a hukum. Circadian rhythm, as we scientists know it. Follow the circadian rhythm. Plants follow it, insects follow it, birds follow it. Why human is rebelling? Follow the circadian rhythm, experience peace. Sacha Sahib, Sach Nai, Pakhya Pavapar. नाई होता है नियम, हुक्म. He is the truth. Now, who is he is not a person. He is the hukum. He is the law of nature. He comes to you in various forms, as Buddha, as Jesus. And if I may say so, if somebody doesn't mind it, Buddha doesn't come to make you a Buddhist. Jesus doesn't come to make you a Christian. Forgive me if somebody minds it, forgive it. You be a Christian. Okay, no problems. But a Christian means what? Christ-like.
Who is Christ? Nirankar. Christ is Nirankar. Jesus is the form of Christ. Guru Nanak is the form of Nirankar. So, if I may say, nobody comes to make you sectarian. I mean, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, they're sects, And within those sects also, there are further sects. In Hindu, there are Brahmins and there are Kshatriyas. The divisions is not what any Sri Krishna wants. Intent of Sri Krishna is that you should be able to experience love. And you want to experience love in the form of Sri Krishna, there is no problem. You experience love in the form of Guru Granth Sahib, why not? Why not? Go to Gurudwara, sit there quietly and love Guru Granth Sahib and experience peace for those 10, 15, 20 minutes and then come and live in peace. Spend your day in peace. Don't waste your time there trying to understand anything or try to do anything or try to ask for anything. And if you want to ask Sri Krishna to, take care of your backache, there's no problem. Because after all, you're forming a relationship with Krishna only. Telling Krishna, maybe backache theek kar do. No problems. Do that. I mean, for the sake of a relationship, do all business, do all interactions with your God. All interactions let them be with your God. And keep thanking Him for everything. Thanking Him means, Alhamdulillah. Whatever you do, तेरा पाना मीठा लाके अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है तूने जो कुछ भी किया बट एटलीस्ट तू तो मेरा है ना जो कुछ भी तू मेरे साथ कर रहा है मगर तू ही कर रहा है ना so this will help you to experience your essential need. Sacha Sahib Sachanai Pakhya Apar because he loves us, that law of nature. जिनी पछाता हुक्म तिन कदे न रोवना जिसको लॉ समझ आ जाता है लॉ हुक्म क्या होता है हुक्म के दो मीनिंग्स हैं हुक्म अपने हस्बैंड को भी बोलते हैं और हुक्म हस्बैंड जो बोलता है उसको भी बोलते हैं हस्बैंड मीन्स राजा द किंग ऑफ योर कंट्री लेट्स से उसको हुक्म बोलते हैं मगर जो वो बोलेगा उसको भी हुक्म बोलते हैं सो जिनी पछाता हुक्म जिसने उसको पहचान लिया कि वो कौन है और उसके वर्ड्स भी पहचान लिए एंड उसके साथ एक रिलेशनशिप बन गया ईश्वर प्रणिधान और तप भी किया मतलब जो वो करता है वो करने दो आई वोंट माइंड इट तेरा पाना मीठा लाके और वो कहता है कि सुबह जल्दी उठ जाया करो हाँ उठ जाया करो चुपचाप एक्सपीरियंस करा करो प्रेम को अपने आप को भर लो प्रेम से दिन भर प्रेम में काट दो बस यही दुनिया जो है मृत्यु लोक नहीं है फिर यही दुनिया ब्रह्मलोक है फिर आप स्वर्ग मरने के बाद नहीं जाएंगे आप स्वर्ग में ही रहते हैं फिर यह कलयुग नहीं है यही सतयुग है सो जो मैं शब्द बोल रहा हूं लेट देम नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड टेक द इंटेंट ऑफ देम intent is that you should get rid of the imaginary myths imaginary ideas and experience peace. Same Bhagavad Gita can make you a warrior. Same Guru Granth Sahib can make you a warrior. तलवार लेके आप कहेंगे कि मुझे पंथ की रक्षा करनी वेल माई इंटेंट इज कि गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेम सीखो भगवत गीता से प्रेम सीखो
मगर इंक्लिनेशन आपकी है। अगर आप तलवार उठा के घूमना चाहते हैं तो उसको भी मैं नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि आपकी अपनी इंक्लिनेशंस हैं। आंखें मंगे दे दे, दात करे दातार। जो आप मांगोगे, जो आप दिल से चाहते हो, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जो मांगता मैं दे देता हूं। सो साचा साहिब साच नाई पाख्या पाव पार। आंखें मंगे दे दे, दात करे दातार। फिर की अगे रखिए जित दिसे दरबार। फिर अगर आपके अंदर ये इच्छा आ जाए कि मुझे शांति चाहिए, मुझे तुमको देखना है, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी योर फेस, तो वो भी दे देगा वो। कोई ना कोई आपका गुरु बन के आ जाए, बुद्ध की फॉर्म ले लेगा, श्री कृष्ण की फॉर्म ले लेगा, पैगंबर मोहम्मद की फॉर्म ले लेगा। Isn't it? गुरु नानक की फॉर्म ले लेगा, गुरु गोविंद सिंह, बहुत ब्यूटीफुल सिटिंग ऑन अ हॉर्स, you can love him. He will take some beautiful form whom you can relate with, whom you can play with, relate with. कभी मिल जाना, कभी बिछड़ जाना, कभी नाराज हो जाना, कभी दोस्त बन जाना, you can play with that, isn't it? So अगर हम पूछें उससे, फिर की अगे रखिए जित दिसे दरबार। मुंहों की बोलन बोलिए, जे तू सुनता रहे प्यार। मैं कैसे बात करूं, क्या करूं जिससे कि मुझे तुम दिख जाओ। हाँ, प्यार करो, मुंहों की बोलन सब कुछ प्यार से बोलो। आपका वॉल्यूम ही बदल जाएगा, आपका टोन ही बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर आदमी से प्रेम से बात करो। किसी से भी नाराज होके मारूंगा ऐसे बात मत करो, प्यार से बात करो हमेशा ही। सो देन ही सेज, अमृत वेला साच ना हो वड्याई विचार। सुबह उठ जाया करो और चुपचाप अपने ही अंदर एक क्वाइट नाद बज रहा है, जिसको एक ओंकार बोलते हैं। हिंदू उसको ओम बोलते हैं। ये हिंदू सिख कोई चीज नहीं है, हमने बना दिया है। वेल, आई ग्रांट यू दैट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर धर्म, किसी ने इस्लाम को प्रोटेक्ट करना है, किसी ने हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करना है, वेरी वेल, लेट दैट बी, बिकॉज दैट्स योर इंक्लिनेशन। मैं तो अपने आप को ना इंडियन समझता हूँ, ना हिंदू समझता हूँ, ना मुस्लिम समझता हूँ, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ। ये सब कुछ ही है, ये तो क्या है। मैं आई वॉन्ट पीस, वॉट एल्स डू आई वॉन्ट इन लाइफ। आई आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। एंड जो कुछ मैं करता हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कुछ मैं हूँ वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काम करने तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर का काम करेगा, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर का काम करता हूँ। वो तो एक बार काम सीख लिया ना, तो किसी ने टीचिंग का काम सीख लिया, वो टीचिंग करता रहेगा। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जो आप हो वो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। सो आप हो क्या? आप प्रेम हो, आप आनंद हो। दैट्स योर रियलिटी। और प्रेम और आनंद एक्सपीरियंस करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाया करो। अपने ही गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठ के उससे प्रेम करा करो। अपने ही कुरान शरीफ के सामने बैठ के उससे प्रेम करा करो। अपने ही गुरु नानक, अपने ही श्री कृष्णा के सामने बैठ के उससे प्रेम करा करो। अपने आप को प्रेम से भर लो और सिर्फ उस प्रेम को बांटो। इन वट एवर विच वे द डे अनफोल्ड्स, लेट मी टेल यू, किसी का भी परिस्थितियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का भी नहीं है। मत समझो कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ आप ही का नहीं, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। हरे राम। Why should I take names? If, let me say, if I take the name of Jesus, did he have control over circumstances?
हम कहेंगे यस, ही चोज टू बी क्रूसिफाइड, परफेक्टली वेल, बट ही डिड नॉट से कि मैंने कोई पाप किए होंगे, दैट्स व्हाई आई हैव बीन क्रूसिफाइड. नो, ही सेड आई हैव चोजन टू बी क्रूसिफाइड. Guru Tegh Bahadur chose to be beheaded. Well, you also choose to become sick. You also choose to be old. And don't blame कि मैंने इसलिए पाप किए इसलिए मैं ऐसा बन गया, मेरे को बीमारी आ गई. श्री रामकृष्ण परमहंसा is an elevated man. उन्होंने क्या, he chose to have cancer. Well, you also can choose to have anything that you want. Nobody has any control over circumstances, but we all have control over our own stance. Not परिस्थिति पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मगर अपनी स्थिति पे तो कंट्रोल है ना, कि आप शांत रहना चाहते हो. Well, be it. You want to be at peace, you want to live in love. बस जब मरना होगा तो सब नहीं मरना है, कोई बात नहीं. Live in peace. If you intend to do that, if you intend to become a warrior, do it. If you want to become a suicide bomber, do it. No problem. So आपकी मर्जी है, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे. जो आपकी मर्जी होगी आपके अंदर, that will definitely manifest and blossom someday. फिर किसी को दोष मत दीजिएगा कि किसी ने मेरा नुकसान कर दिया या किसी की वजह से मैं सफर कर रहा हूं. नहीं, अपनी इंटेंट की वजह से आप सफर कर रहे हैं. हरे राम, वाहिगुरु. सो माई इंटेंट इज ओनली टू वेक यू अप, टू शेक यू अप, and to tell you, you essentially want peace. You essentially, this is your primal desire. क्या आपको शांति चाहिए? हर एक आदमी को चाहिए. कोई सोचता है कि मैं मरने के बाद मिलेगी मुझे. चलो कोई बात नहीं, मरना तो सब नहीं है, आप भी मर लो. इस जिंदगी में तो मुझे सबको मारना है, मगर मरने के बाद मुझे शांति मिलेगी. नो प्रॉब्लम. उसके बाद जो आपको ठीक लगता है उसको मान लो. हरे राम. मगर गुरु साहब मुझसे सुबह उठा करो, अगर तुमको शांति चाहिए तो सुबह उठा करो. ये गुरु नानक कहेंगे, यही गुरु गोविंद सिंह भी कहेंगे, यही बुद्ध भी कहेंगे, यही मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद भी कहेंगे. अपनी 5 नमाज करा करो, सारा दिन मुझसे प्रेम करने की कोशिश करा करो. 5 बार 5 बाणियां करा करो. हर बार 3 संध्या वंदन करा करो. हर संध्या में, जब दिन रात को मिलता है उसको संध्या बोलते हैं. जब रात दिन को मिलती है उसको संध्या बोलते हैं. संध्या मतलब 2 चीजों का मिलना. जब भी ये दिन का टाइम्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं तो आप भी मिला करो, मिलन एक्सपीरियंस करा करो. हरे राम. मिलन एक्सपीरियंस करा करो अपने ही अंदर, एंड ब्लेस योर सेल्फ. हरे राम. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा. I am in love, so I love you all. I am in love. Hare Krishna, Hare Ram, Vaheguru, 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 Vaheguru.